नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Dear and respected viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Here we are here with your favorite program Iqra, in which we teach our viewers how to recite Holy Quran with proper pronunciation and accurate accent. According to the format of our program, first as usual, we shall give you the recitation of holy verses, and our today's program consists of 7 to 9 verses of Surah An-Nahl of the 16th chapter of Quran Majid, Furqan Hamid. So let us listen to these verses according to the teaching of the Quran, that means attentively, lovingly and silently. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ولو شاء لهداكم أجمعين. صدق الله العظيम. नाज़रीन किराम, हमारे सबक का दूसरा मरहला, और इस मरहले में हम तिलावत की आयत को तलफ़्फ़ुज़ करते हैं, अलहदा करके, ब्रेक करके, आपकी सहूलत के लिए पढ़ते हैं। आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, इसको दोहराते हैं, और इस तरीक़े से क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को रवानी के साथ, तरतील के साथ, फ्लुएंटली आप पढ़ना सीख जाया करते हैं। तो आइए इस मरहले में हमारे साथ दोहराएँ, हमारे साथ शामिल रहें, ताकि क़ुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का सही तरीन मखरज आपको हासिल हो सके। वतहमिलु अथक़ालकुम इला बलदिल लम तकूनू बालिगीही
इल्ला बिशिक्किल अंफुस, बिशिक्किल अंफुस। और अगर मिलाकर पढ़ेंगे तो बिशक्किल अंफुसी, बिशिक्किल अंफुसी। इन रब्बकुम, इन रब्बकुम लरऊफुर रहीम, लरऊफुर रहीम। वल खैल, वल खैल वल बिगाल, वल बिगाल वल हमीर, वल हमीर लितरकबूहा, लितरकबूहा वज़ीनह, वज़ीनह। नाज़रीन इकराम, जब हम यहाँ पर ऐसी सूरत में जब ये ता मौजूद हो तो फिर जब वक्फ करते हैं तो इसको हाँ में बदल कर इस तरह पढ़ते हैं वज़ीनह। लेकिन अगर मिलाकर पढ़ें तो वज़ीनतन व यख़लुक़ु, ता को वाव से मिलाएंगे इस तरह के वाव पर तशदीद करते हुए हम गुन्ना करते हुए पढ़ते हैं वज़ीनतन व यख़लुक़ु मा ला तअलमून व अलल्लाहि क़स्दुस सबीली, व अलल्लाहि क़स्दुस सबीली व मिन्हा जाइर, जाइर। और वही फार्मूला अगर हम मिलाकर पढ़ें तो इस रा को वाव के साथ इस तरह मिलाएंगे कि वाव पर तशदीद करते हुए हम पढ़ेंगे जाइगुन वलौ शाअ, वलौ शाअ लहदाकुम, लहदाकुम अजमाइन, अजमाइन। Dear viewers, this is the third part of our program in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic as well as in English alphabets or romanized or transliterated for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. So keep watching this program and stay with us. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. In Roman, وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ، لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رحيم. لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس
इन्न रब्बकुम लरऊफुर रहीम। इन उर्दू, और ये जानवर उठा ले जाते हैं तुम्हारे बोझ उन शहरों तक जहां तुम नहीं पहुंच सकते मगर सख्त मुशक्क़त से। बेशक तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है, हमेशा रहम फरमाने वाला है। In English, and they bear your loads for you unto a land ye could not reach, save with great trouble to yourselves. Lo, your Lord is full of pity, merciful. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. In Roman, والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. इन उर्दू, और उसने पैदा किए घोड़े और खच्चर और गधे ताकि तुम उन पर सवारी करो, और तुम्हारे लिए उनमें जीनत है, और पैदा फरमाएगा ऐसी सवारियों को जो तुम नहीं जानते। In English, and horses and mules and asses hath he created, that ye may ride them, and for ornament. And he created that which ye know not. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. In Roman, وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. और अल्लाह ताला के ज़िम्मे करम पर है राह रास्त को दलाइल से वाज़ेह करना, और इनमें गलत राहें भी हैं, और अगर अल्लाह ताला चाहता तो तुम सबको हिदायत दे देता. And Allah's is the direction of the way, and some roads go not straight. And had he willed, he would have led you all aright. नाज़रीन किराम, सबक का आखिरी मरहला और इस मरहले में तिलावत की गई आयत को हम समराइज़ करके बयान किया करते हैं। पिछली आयत में ऊँटों का, भेड़ों का, बकरियों का, गायों का तज़किरा किया जा रहा था और बताया जा रहा था ये वो चीज़ें हैं जिनको तुम अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हो, यानी इनके गोश्त से इस्तिफ़ादा करते हो, और फिर पहनने के काम यानी कपड़े भी इससे बनाए जाते हैं। और जाहिर है कि हम जानवरों की खालों से गर्म कपड़े भी बनाते हैं, और पिछले ज़माने में इससे आम कपड़े भी बनाए जाते थे। लेकिन अब इन आयात में ज़िक्र किया जा रहा है घोड़ों का, खच्चरों का और गधों का, और यहाँ पर बताया जा रहा है ये तुम्हारी सवारी के लिए है। लिहाजा उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। वो चीज़ें जो हलाल थी
उनको पहले जिक्र किया गया, उम्मत मुस्लिमा पर जिनको खाना हराम है उनका बाद में जिक्र किया जा रहा है और बताया जा रहा है ये वो चीज़ें हैं जिनको तुम सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया करते हो। और फिर फरमाया जा रहा है कि बाद में आने वाले वक्त में हम तुम्हें ऐसी सवारी भी आता फरमाएंगे जो तुम नहीं जानते। यहाँ पर कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक बड़ी मानवी बात की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी उस ज़माने के लोगों से खिताब किया गया कि जबकि ऊँट और खच्चर और गधे उनकी सवारी का एहतिमाम किया करते थे, एक शहर से दूसरे शहर तक उनके बगैर सहराओं को उबूर नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज का जो मादी इंसान है उसको भी बताया जा रहा है कि ए इंसान, एक वक्त ऐसा आएगा हम ऐसी सवारियाँ भी तुम्हारे लिए प्रोड्यूस करेंगे, पैदा करेंगे जिनको तुम अभी नहीं जानते। तो यकीनन आज की दुनिया में आप जानते हैं कि मोटर कार का ज़माना है, हवाई जहाज़ का ज़माना है, आज रॉकेट दागता है, इंसान ज़मीन के महवर से निकल कर और फिर चांद के महफर में दाखिल हो जाता है, एक ताकत प्रोड्यूस हो चुकी है। ये सारी की सारी वो सवारियाँ हैं जो कल ना थी, जो कल थी उनका जिक्र किया गया और जो आने वाली थी उनको भी इशारतन किनायतन कुरान ने बयान किया। अब ये बात चीज़ें हैं घोड़े, खच्चर और गधे, इनके मुताल्लिक हम देखते हैं कि मालिकिया और अहनाफ यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मानने वाले, इमाम मालिक के मानने वाले, उनके नज़दीक इनको खाना नाजायज़ है, इनकी हुर्मत और तक़दीस है। और इसके बाद हम्बली और शाफ़ई के नज़दीक ये जायज़ हुआ करते हैं। चुनाचे हदीस मुबारक में आता है, हज़रत उमर फ़ारूक अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम एक जंग में मौजूद थे कि वहाँ पर एक शख्स आया और उसने आकर कहा कि जनाब ये खच्चर, ये गधे ख़त्म हो गए हैं, लोग पका रहे हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जानवर नजिस हैं, इनका गोश्त आज के बाद नहीं पकाया जाएगा। चुनांचे वो हंडिया में जो उबलता हुआ गोश्त था वो सारा का सारा आपने ज़मीन पर फेंक दिया। इससे मालूम ये हुआ कि घोड़े, खच्चर, बिलखुसूस गधा, ये नजिस होने की वजह से इस्लाम में इसको नापाक और हराम करार दिया गया है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें हराम और हराम में हलाल में तमीज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اقرأ باسم ربك